So basically, it was like so hardcore, right? Like still if I watch हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं, मैं सलमान खान को देख के मुस्कुरा सकता Of course, हूँ। मुझे कुछ होता है, मैं वो सलमान का उतना सा पोर्शन जहाँ पे वो साजन जी घर आया डांस करता absolutely. So I think those were the wondrous years of growing up in the 90s. है या अभी स्टार सिस्टम थोड़ा कम क्यों हुआ? टू मच ऑफ एक्सपोजर I guess. I think there's no mystery and enigma around it anymore. कि हमने सब इंस्टाग्राम पे देख लिया. Everything is on the gram. Everything is for the gram. Everything is on the gram. Where is that mysteriousness? Like, where you wait to get one jhalak of your favorite star. या एक कहानी जो सुनने को Yeah. अखबार में या किसी मैगजीन में मिलती थी. Yeah. We used to cut out photos and make a scrapbook and like look at the things we've done. I've done that for Aishwarya Rai before I met her. आप तो ऑर्कुट के जमाने की होगी ना. Yeah. Oh, come on now. Orkut, ICQ. Remember? आज The की generation initial- को पता भी नहीं होगा ऑर्कुट क्या I है. don't think so. कैसे स्क्रैप्स भेजे जाते थे I don't think so. But it was so charming. It was so much fun. बिफोर फेसबुक. अब तो फेसबुक भी आउटडेटेड हो गया. उस Exactly. टाइम लग रहा था कि शायद फेसबुक इज नेक्स्ट फ्यूचर. Exactly. Now it's all Snapchat and like instant Snapchat, gratification. Instagram, नाइस. मैं आपकी फिल्मों के बारे में मुझे लगा कि एक थोड़ी सी सीरीज निकालते हैं. बहुत सारे सवाल मेरे पास आपके लिए. तो शुरुआत करते हैं मगधीरा से. राजमौली सर, आप बहुत यंग थे. आज राजमौली सर के साथ हर कोई काम करना चाहता है, बट वो फिल्म मुझे लगता है बहुत आइकॉनिक फिल्म थी जिससे हमने टीवी पर तो बहुत एंजॉय किया. आज हम राजमौली की फिल्में थिएटर में देखने आते हैं. उस टाइम वो टीवी पर छाई हुई थी. मतलब मुझे नहीं पता मैंने कितनी रातें खाना खाते हुए मगधीरा देखी है. सो राजमौली ने जो आपको सेलेक्ट किया होगा उस टाइम पे, आप बहुत यंग थे, सोचा कुछ अब चलता है कि यार कैसे सेलेक्ट हुई थी या क्या देखा उन्होंने? तब मैं अपनी पहली फिल्म कर चुकी थी लक्ष्मी कल्याणम तेलुगु में और आई वॉज सपोज टू डू राजमौली सर्स immediate next before Magadhira and that was supposed Rajmouli sir's film was supposed to be my second film. Lakshmi Kalyanam did not fare very well in the box office, but it did very well for me because I got noticed out of it and I was getting good offers at that point of time. At that point, because I said no to another film, even Rajmouli sir's film did not happen. The one that I was supposed to do with Tarak, with the NTR, Junior NTR. And I was, of course, very upset and disappointed. And I was like, oh my God, I really want to work with Rajmouli sir. It did not materialize. हुई नहीं film. अब मैं क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं. शायद किस्मत में लिखी ना हो, वगैरह वगैरह. Rajmouli sir at that point had told me that I really want to work with you. This film's not happening. I'm going to give you my next. At that time, nobody knew what his next was. So I was like, okay. And I thought maybe he's just being really kind, you know, like he's being so sweet about it. He doesn't want me to feel bad. Newcomer hu, vagera, vagera. And he's being very encouraging and stuff. I said, yeah, sure. I mean, with all due respects, I'd love to work with you at any given point of time. And it's sad that this is not working out. I moved on. I did a couple of other films. His next was Magadhira. And he said, I want this girl. I've given her my word. And the makers were not very sure. They were like, okay, sure, but we'll have to figure it out if she can fit into the role of it. Rajmouli sir was convinced. He made sure that he does a photo shoot to convince the production, to convince the producers. He made me do the photo shoot. His wife, Rama ma'am, is usually the person behind the entire look of all his films. So I spent... आप बहुत सारी लैंग्वेज में क्योंकि हो, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर हम हिंदी में आ जाएं, हाँ, sure. तो शायद बहुत बड़ी आबादी को थोड़ा समझ में आ जाएगा. तो तभी मैं... क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल. मैंने बोला ना मुझे 10 सेकंड लगते हैं प्रोसेस करने में. अपॉलॉजी के साथ. नहीं, बिल्कुल नहीं. So तभी मैं रमा मैम के साथ वर्क कर रही थी लुक पे और उन्होंने मेरा फोटोशूट करवाया. हिंदी टफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फोटोशूट करवाया, तभी फोटोज निकलवाए और राजमौली सर कन्विंस्ड थे. उनको यकीन था. उन्होंने फोटोज प्रेजेंट किए और मुझे रोल मिल गया. इट वाज एज इजी एज दैट. अच्छा, अभी जब सब बहुत बड़े बड़े पैन स्टार बन गए, पैन इंडिया स्टार बने, आपने जूनियर एनटीआर का नाम लिया, रामचरण की हम बात कर रहे हैं, राजमौली सर की बात कर रहे हैं, तो ये सब जब पैन इंडिया फेमस हो रहे थे, RRR या बाहुबली या बाकी फिल्में, आपको लगा मेरे को तो पता था? मुझे मेरे कोस्टार्स पे बहुत ज़्यादा यकीन था और मुझे पता दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. मुझे पता था कि ये लोग ऑब्वियसली छाने वाले हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. एंड राजमौली सर, उनमें ऐसा जादू है कि जब आप काम करोगे उनके साथ, आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि ही इज़ नॉट मेड फॉर नॉर्मल स्टफ. ही इज़ मेड फॉर सुपरस्टारडम. हाँ, मतलब बाहुबली जब मैंने पहली बार देखी,
मेरा मुंह ऐसे खुला रह गया था। आई रिमेम्बर मैं थिएटर में घुसा और प्रभास का वो सीन आ रहा था जिसमें वो शिवलिंग को लेकर जा रहा था। वो बैकग्राउंड आई वाज लाइक ये क्या था? एग्जैक्टली ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा था। राजमौली सर अंडरस्टैंड्स, उनको पता है कि ऑडियंस की पल्स को कैसे टैप करना है, उन्हें पता है क्या चलेगा, ही जस्ट इंस्टिंक्टिवली नोज इट। और ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये प्रोसेस आप उनके साथ काम करके ही समझ सकते हो कि वो करना क्या चाहते हैं, वो बना क्या रहे हैं। सो जब मैं मगधीरा कर रही थी मुझे फीलिंग तो थी, लेकिन तभी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म बनने वाली है और ऐसी छाने वाली है और ऐसी कल्ट फिल्म बनने वाली है। बाहुबली के बाद मगधीरा लोगों ने दोबारा देखी थी, आपके पास फीडबैक्स आए थे? क्योंकि कई लोगों का मानना था कि अगर बाहुबली के बाद मगधीरा रिलीज करते, क्योंकि बाहुबली नॉर्थ में भी रिलीज बड़े पैमाने पर हुई तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, मगधीरा को टीवी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था, बट शायद उस टाइम नॉर्थ में इतना बड़ी रिलीज नहीं हुई थी, वो साउथ में बड़ी हिट थी। जी, डू यू थिंक अगर मगधीरा को भी वैसे रिलीज कर जैसे बाहुबली रिलीज की गई थी? आई थिंक री रिलीज हुई थी मगधीरा, कुछ साल पहले री रिलीज हुई थी और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। हम सब बहुत यंग थे तभी, आई मीन इतना You're still so young. एक्सपीरियंस, बट वी वर सो इनएक्सपीरियंस्ड इज व्हाट आई मीन बाय यंग। आई डोंट मीन एज, आई मीन द इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था और एक्टर के लिए सबसे बड़ी पूंजी तो एक्सपीरियंस ही है। लाइक विद एक्सपीरियंस यू बिकम अ बेटर परफॉर्मर, you understand emotion better, you understand culture better, you understand everything better, you understand camera technicalities better. साउथ को लेकर एक परसेप्शन आता है कि साउथ एक्टर्स में टैलेंट देखता है, हीरोइन में क्यूटनेस प्रिटीनेस देखता है। इज इट ट्रू? अब बॉलीवुड की बात भी मैं कर लूं, हीरो हमें चाहिए जो पावर पैक सिनेमा वाला हो, हीरोइन वो चाहिए जो सुंदर सी दिखती हो। डू यू थिंक आपको आपकी सुंदरता का फायदा मिला? एडवांटेज मिला, फायदा नहीं मिला, क्योंकि एक्टर को you have to prove yourself in terms of talent. Nothing can replace that. However good looking you are, if you're not talented, it'll be probably one film. अगर वो फिल्म पे आप खरे नहीं उतरोगे तो आपको सेकंड फिल्म नहीं आएगी, आप जितने भी गुड लुकिंग हो। True. बहुत सारी एक्ट्रेस रोल होती है आज के टाइम में। And there are phenomenal looking women all around us. But the fact that it's hard work and talent that actually matters. Looks is an addition, but it cannot be your primary substitute. सो एडवांटेज मिलता है, लेकिन उस एडवांटेज पे अपना पूरा करियर प्लान करना बेवकूफ़ी है। चलो मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ, सुंदर होने के नुकसान क्या होते हैं? रियलिस्टिक रोल्स नहीं मिलते, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि शक्ल के आगे भी देखो। जी, कि मुझ में और भी है। True. कि आप प्लीज शक्ल को इग्नोर करके काम देखो ना पहले। True. हर इंडस्ट्री में है सब, हाँ, बिल्कुल। ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी है। I जी। suffered a lot, so I can say. I like how you gave yourself a sly compliment. But actually बहुत समय लगा। No, I agree with you. ये कहने में कि यार कंटेंट भी देख लो, बिकॉज एवरी टाइम आप अप्रिशिएट हो रहे हो, किसी ने कहा कि ये एडवांटेज था इसलिए लोगों ने देख लिया। So लाइक ओके ठीक है, काफी टाइम उसमें फिर मतलब आपको जाता आपको लगता है। सो आई रियलाइज कि एक्टर्स में तो और ज्यादा होता होगा। लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है सेम। हाँ, अगेन वही इसलिए मैंने कहा ना कि हर इंडस्ट्री में शायद ये होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा गुड लुकिंग हो तो शायद आपको इनिशियल एडवांटेज मिलता होगा, बट फिर उसको लेके एक वर्ग आता होगा जो क्वेश्चन बहुत करता होगा। एग्जैक्टली, इस वजह से यू नीड टू प्रूव द सीरियसनेस बिहाइंड इट। आपकी काबिलियत को जस्टिफाई करने के लिए वो एक लाइन चिपका देते होंगे जी, जिसमें आपको अपने टैलेंट से जस्टिफाई करना पड़ रहा होगा कि हाँ आई हैव मोर टू ऑफर। करेक्ट। और अगर आप थोड़े से एवरेज हो तो आई थिंक लोग आपकी एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं कमाल की एक्टिंग की है, अच्छी एक्टिंग नहीं की है। तो मुझे लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। Absolutely. No, you've hit the nail on its head. I feel that's exactly how it is. प्रभास, मिस्टर परफेक्ट And Darling, both. डार्लिंग वो कमाल की फिल्म थी। Thank you. प्रभास तब भी ऐसे ही थे? Same. लेजी गाय? No, not lazy. That's not what I meant. फूडी गाय? Foodie for sure. Extremely hardworking, not lazy at all. So I was big fan of प्रभास also because thanks to again I'm saying ना कि साउथ के एक्टर्स को नॉर्थ में टीवी ने बहुत फेमस किया। आप ये मानते हो? आपको कब पता लगा आप पैन इंडिया फेमस हो? चलो मैं प्रभास के बारे में बाद में आऊंगा। पैन इंडिया बात जब मैं घर वापस लौटती थी और मुझे रोड पे रिकॉग्निशन मिलती थी मेरी साउथ की फिल्मों के लिए, तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरी साउथ की फिल्में केबल पे रिलीज हो रही हैं। अच्छा आपने देखी? अच्छा, पहले तो मुझे आश्चर्य होता था कि अच्छा आपने कैसे देख ली, क्योंकि तब OTT was not a thing, right? It's just about become a thing. After COVID. So I was like, okay, how did you even see that film?
And I was taken aback, very happy that, oh wow, the reach is actually there all over the country. So तब मुझे एहसास हुआ